Good morning, everyone. I'm Ankita Das. I have given NEET this year, and I scored 653 marks. My all over India rank was 6,157. So yes, everybody says that NEET is very difficult to do, or you may have heard कि यार ये तो हमारे बस का नहीं, या फिर 650 प्लस या सपना है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली. देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा आप क्या सोचते हो इस एग्ज़ाम के बारे में, इसके ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू टेक इज इट एज अ चैलेंज, देन मे बी कि आप इसके अंदर फेल हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ एक जर्नी है, ये एक चैलेंज नहीं. आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर दिन आपको एक नया जुनून चाहिए, क्योंकि चैलेंज इज़ लाइक अरे ये मिल गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया आज के दिन, ये ऑब्जेक्टिव आज हो गया, तो हम लोगों का हो गया. बट दिस डजंट गिव यू रिजल्ट वन डे. You need practice, you need some like perseverance to actually have this aim कि यार NEET करना है. It's not difficult, I would say, because it's just need everyday effort, step by step. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप एक दिन में ही 8 घंटे पढ़ने लग जाओ या फिर 10 घंटे पढ़ने लग जाओ. इट नेवर हैपन्स लाइक दैट. पहले दिन अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, एक मैं अगर 11th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर मैं बोलूँ तो वो स्टार्ट करता है एज अ वेरी लाइक, क्योंकि 10th तक तो हमारा क्या होता है, सब कुछ स्पून फीडिंग होती है. आपको जो दिया जाता है मटेरियल, उधर से ही आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, उधर से आपको एग्ज़ाम देना है. बट आफ्टर 11th, व्हेन यू come into 11th, then the game starts, then the life starts, because now you are actually dependent on various modules. आपको इंस्टीट्यूट बोलेगा कि डीसी पांडे खरीद के लेके आ जाओ, आपको कोई दूसरा इंस्टीट्यूट बोलेगा कि ये वाले मटेरियल खरीदो, ये वाला हो जाएगा. आपको बोलेगा कि एनसीईआरटी कर लो. एनसीईआरटी का तो बहुत बाद में आता है, ये आई वुड कम लेटर. बट there are many things which you are actually thrown on कि ये करना है, वो करना है, and people become confused at that point of time. Even I have that confusion when I came into 11. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ये चीज़ें कैसे करें, एक एक चीज़ में 200 to 300 क्वेश्चंस है, मैनेज कैसे करें. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ. कुछ नहीं, बस रिलैक्स करो अपने आप को. यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू 100 of questions. You need to go through 50 questions of selected pattern, which actually gives you a knowledge of different concepts. That's the thing, and that's the thing. Okay, so that's the thing. You do not have to practice a lot. Like 200 questions same ही pattern का करे जा रहे हो, that wouldn't give you a different result. For a different result, you need to practice something different. Then only the result would come. For example, if you are doing only 50 questions, I would just say 50 right now because that's the minimum. I would just say अगर 11th standard में एक बच्चा है तो daily का भी 50 question कर लेता है अगर पूरा whole total. I'm not saying कि एक subject का per subject. No, I'm not saying that. Just do 20, 10 और ऐसे मतलब थोड़ा सा practice. लेकिन हर रोज, that's the different thing. हर रोज वही concept को फिर से revise करना, that's the different thing. That's the catch, and which most of the people misses. देखो इधर I have also done my like learning part from EMC Square. So teachers are always there to help you out. But the thing is, you are the only person who can actually take yourself out from a battle which is going on over here. Why I say this? Because till the time you do not approach a teacher, for example, Rohit sir हैं, भावेश sir हैं, chemistry के different faculties हैं, आपको तीन मिलते हैं क्योंकि आपको inorganic करवाना पड़ता है, organic करवाना पड़ता है, and there are different type of teachers over here. Teachers हैं आपको help करने के लिए, but the thing is कि आपको किस चीज़ में हेल्प चाहिए ये बस आपको पता है, किसी और को नहीं पता. That's the thing. तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में चाहिए हेल्प? That comes from practice, which I said कि 10 to 20 questions. In the beginning, I would not suggest कि जो दूसरे लोग बोलते हैं कि 100 क्वेश्चन करो, ये बुक सॉल्व कर लो तो हो जाएगा. No, that's not going to help you out, because to have a good book and to have a great teacher who can actually choose you कि तुम्हारा level ये है, तुम पहले ये करके आओ, इतना करके आओ, then I would give you the next
task or the next year. Do not actually underestimate your teacher's word, please. I would just say, just blindly follow them, whatever they say. ये वाला क्वेश्चन करके आना है, कल तक चाहिए, कल तक ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. The teacher doesn't give you, see, the teacher, ये इसलिए मैं बोलती हूँ कि to have a great teacher is actually a blessing, because a teacher actually understands your pace, and when he understands that, na, he would actually modify himself according to you. But how he would actually modify it? According to your questions. See, अगर आप पूछते ही नहीं हो कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को 2+2 में क्या होता है आंसर, वही नहीं पता, अगर वो चीज़ पूछता है तभी तो टीचर को पता चलेगा ना कि उसका नॉलेज कहाँ है. अब वो अगर एक बंदा ये नहीं समझ में आ रहा और एक दूसरा बंदा है जो रूट निकालना नहीं जानता, दोनों स्टूडेंट्स में डिफरेंट है, लेकिन ये समझ में कब आएगा? जब वो बच्चा वो क्वेश्चन लेके जाएगा. आप यही इसी चीज़ में डर जाते हो कि सर क्या सोचेंगे. सर कुछ नहीं सोचेंगे, लास्ट में लॉस आपका होगा. सर डांटे फटकारे कुछ भी करे. द थिंग इज कि आपको खड़े रहना है, आपको अपने लिए पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं पढ़ना है. ओके, then I would come. This is the normal pattern which I had followed. Just blindly follow your teacher. Whatever they have given you, whatever assignment they have given you, whatever time they have given you, please complete. Like, just don't get, like, अगर आपके टीचर ने आपको वो दिया है ना, दिमाग लगाने का ही नहीं, वो जानता है कितना आप कर सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी जानता है, बस खत्म कहानी. बट यू नीड टू टेल दैट टीचर कि ये मेरी कैपेसिटी है. हाउ यू वुड टेल इट? अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, हाउ यू आस्क योर क्वेश्चन. डू नॉट बी स्कैर्ड प्लीज. ये आपका है, ये आपका बैटल है. अगर आप ही शस्त्र नहीं उठाओगे तो कौन ही आपको हेल्प करेगा? यू नीड टू फाइट फॉर योर सेल्फ. ओके, द सेकेंड थिंग, वो जो मेरे साथ भी होता है, किसी और के साथ भी होता है. For example, this parent stress. Yes, that's the thing need to be discussed over here. I would just say कि जब आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, पापा मम्मी बोल रहे हैं कि आई हैव सीन कि पापा मम्मी बोल रहे हैं कि खाना मत खाओ, मतलब इतना ज़्यादा क्यों सो रहे हो. See, there is a thing which is actually a stereotype of most of the people कि कम सोने से या फिर ज़्यादा पढ़ लेने से आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. नहीं, क्योंकि ये गेम कंसिस्टेंसी का है. ये गेम एक्चुअली में एक आई वुड से रूटीन का है. इट इज़ नॉट अबाउट एक दिन आपने 10 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन आपने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा. नहीं, ये नहीं होता. आप एक रूटीन बनाइए, आपको एक चीज़ में ढालिए. आप अगर इतने घंटे सोते हो, उतने घंटे सोना है. यू डू नॉट हैव टू कट ऑफ योर स्लीपिंग टाइम, बिकॉज स्लीप, आप एक डॉक्टर बन रहे, आपका दिमाग कैसा चलता है ये आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे मोबाइल को चार्ज चाहिए होता है कुछ भी करने से पहले, that body needs that charge, and that charge comes from your sleeping time. You cannot cut over there. आप कुछ सी चीज़ में आप किस में कट कर सकते हो? अच्छा ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा. बच्चे लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिल रहा मुझे पढ़ाई करने. टाइम कैसे नहीं मिल रहा? आपने इंस्टीट्यूट किया, आप कहाँ कहाँ कट कर सकते हैं. आप यू कैन जस्ट कट योर सोशल मीडिया लाइफ ओवर देयर. यू कैन जस्ट कट ऑफ योर सी, इट इज़ नॉट अ टाइम लाइक आपको फुल लाइफ करना है, ये नहीं कह रही हूँ मैं. इट इज़ अबाउट ओनली 2 years, और 2 years के अंदर में आई विल जस्ट से 6 months लास्ट के, जहाँ पे आपको कट ऑन करने चाहिए टाइम कि आप सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके उतना रहिए, क्योंकि दैट क्रिएट्स अ मेंटल प्रेशर. आई वुड जस्ट से दैट क्रिएट्स अ मेंटल प्रेशर व्हिच इज नेवर एवर रिक्वायर्ड इन योर एग्जाम. Secondly, you can actually cut off the communications which you have with other people, because see, meaningless communication wouldn't help you. At the end of the day, you are going to give the paper, and meaningless communication would actually deviate you from what you want. For example, चाय पीने जाना है, समोसा खाने जाना है, that wouldn't actually get you anywhere. So just focus on what you want and how you want it. And I'm not saying कि आप थोड़ा सा चिल भी ना करो, चिल करना है, लेकिन टाइम ये आपको समझना होगा कितना आप देना चाहते हो. देखो, ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा करने के बाद देना चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव ना पाए ही पहले मज़ा कर लिया फिर देखा जाएगा, ये नहीं होना चाहिए.
ये ऑब्जेक्टिव ही गलत है. बात करते जा रहे हो, एक टीचर पढ़ा रहा है सामने, आपका अटेंशन ही नहीं है, आप अपने में ही लगे पड़े हो. ये कौन सा है? अगर मैंने बहुत जनों को देखा है, टीचर का पढ़ाना समझ में नहीं आ रहा है. टीचर का पढ़ाना समझना तुम्हारी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी नहीं है कि आप समझो कि नहीं समझो. Because he is teaching 45 to 62 students, he need to actually be there for 60 students, and it is your duty to actually get yourself accommodated with him. Because देखो, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा. कंप्लेन करने से बस वो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी लास्ट में जाके कि वो था इसलिए मेरा नहीं हुआ, वो टीचर अच्छा था, ऐसा नहीं था कि अच्छे से पढ़ाया नहीं इसलिए मुझे नहीं. That would just give you that वो excuses, and this game doesn't work on excuses. बैटल करना है तो एक्सक्यूजेस को छोड़ना पड़ेगा. अच्छा, थर्ड पॉइंट इज़ लाइक डू नॉट टेक मेंटल प्रेशर. आपके ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ भी खुद से हुआ है कि एग्ज़ाम्स के पहले ऐसा लग रहा था कि आई कैन नॉट डू इट. मतलब आई वॉज लाइक सो, मतलब लाइक I was doing so much but I'm not getting that result, and then parents के pressures and like नहीं होगा. मतलब there would be 100 of people around you who will be saying कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, but there will be few people who trust you, like my teachers I would just say, who trust you, who actually just gives you your like their hand to hold, to support. And please do not never ever just neglect them, because they are the only one who will take you out, who would actually be there for you, okay, when you need them. Because for me, I'm not very much like a person who can actually open up what all struggles I was going on. But the thing with my teachers was like I was so connected with them, they can actually see what is going in them just seeing my facial expressions. So I would just say for me it's always been my teachers who can actually help me out. For you, it can be a friend, it can be your family member, it can be your parents, it can be anyone, but find someone. Or you actually do not have to find them, they are around you. You just have to just see who is that person who actually trusts you on your efforts. Okay, trust doesn't be like blindly trust, that's harmful, that is devastating, I would say. The trust on efforts and trust which is blindly is totally different. For example, you are getting 10 marks out of 100 marks and a person says कि बेटा तू टेंशन क्यों कर रहा है, फाइनल आने देना, तुझे 100 out of 100 मिलेंगे. That's not a trust, that is just fooling you out. तब आप टेंशन फ्री हो जाते हो. That's not the trust. For example, which trust I am talking about is like आपको 60 marks आ रहा है out of 100, but you have actually worked for 90 marks. Okay, your sir has seen that potential in you, that you have a teacher, you have anyone, your family member, your father, your mother, anyone, your brother, sister, someone, okay, have seen you that much effort you have put in, and then they say don't worry, you need to work hard a little more and you would secure that. What you dream about now, you would secure that. That's the trust. That's the trust I'm talking about, not the blind one. Okay, so find someone, because there are 100. I would just say 100. There were lakhs of people who would not like actually want you to be a doctor. Okay, I would just say that very clear. Okay, very clear cut. Because see, it's a human nature tendency. Okay, you cannot actually see someone's more better than you. Okay, that's the thing, that's jealousy you can say, or anything. But there are people, okay, who would support you out in this mental struggle. And try to do pranayam. I have started with that. Try to do meditation. For only like I have the meditation schedule, like when I wake up, I sit for 5 to 10 minutes. Just close your eyes, breathe calmly, and try to count the breath. I used to do it like that. You can have your own meditation style. It actually it energizes you for the day, and it actually whatever past has been gone, so it just gives you, it's okay, it has been done. अब सामने वाला देखता है. दैट फ्यूचर का जो देना है ना, वो एनलाइटनमेंट वो बहुत कम चीज़ों से आती है. हम लोग जो देखते हैं कि पास्ट में ऐसा हो गया, एंड देन वी इट्स हैपेंस. आई नो दैट डिप्रेसिंग फेस, दैट क्या कुछ नहीं करना, पड़े रहना है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, ये वाले स्टेज में बहुत जन जाते हैं. एंड आई वुड जस्ट से कि मत जाओ, संभाल लो खुद को, क्योंकि ये
बहुत पेनफुल होता है वो वाला जो होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है सामने क्या होने वाला है. दैट्स बिकॉज कि यू डू नॉट हैव अ थिंग इन योर सेल्फ विच इज़ क्रेविंग फॉर मोर थिंग लाइक अ सक्सेस. और ये जब आप ये सब में आ जाते हो ना थोड़ा सा आई विल नॉट से मेडिटेशन और समथिंग लाइक दैट, मतलब आप जिसके अंदर आपके ब्रेन को काम करने को सीख जाते हो तब आपको दिखता है सामने कि यार पीछे गया ना, हो गया ना वो चीज़. यू कैन नॉट कंट्रोल दैट ना, यू कैन कंट्रोल द present. You cannot control the future also, I would say. You just have the power to control your present, which you are in. आप सोच सकते हो, बड़ा सोच सकते हो, लेकिन उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं है. सो डू नॉट गेट डिवास्टेटेड. यार इतना पढ़ा था फिर भी मार्क्स नहीं आए, ये क्या चल रहा है. एंड उसके पीछे आपने और 10 दिन गवा दिए ना पढ़ के कि क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए. अरे हो गया ना, नहीं आए, अब और अच्छे से पढ़ना है. So that's the thing. I would just say this is the strategy which has followed about about NCERT. People take NCERT very lightly. They think यार NCERT actually में जब आप पहली बार पढ़ोगे तो उसके अंदर जो मटेरियल है जितना देखे रखा वो बहुत कम लगेगा एज कम्पेयर टू योर इंस्टीट्यूट. कोई भी आप जहाँ पे भी है EMC स्क्वायर का जितना भी मटेरियल आप देख रहे हो इतनी सी बुक है. हाँ, उसमें क्या ही इम्पोर्टेंस रखा होगा बच्चे ये सोचते हैं. बट वो बुक अगर किसी को समझ में आ गई तो उसका भला ही भला, नहीं तो वो तो जाएगा नीचे. बिकॉज द नीट क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द लाइन्स ऑफ NCERT. यू नीड टू रीड NCERT इवन इन फिजिक्स फॉर वंस. आई हैव डन इट. फिजिक्स के अंदर एक बार, और केमिस्ट्री तो चाट जाओ यार. इनऑर्गेनिक्स जो लास्ट वाले जो चैप्टर्स आप एक्चुअली छोड़ देते हैं इस ईयर में आया था. एंड आई वॉज वेरी शॉक टू सी कि यार जो एफर्ट्स दिए थे वो मतलब हाँ दिख रहा है सामने. व्हेन यू रीड समथिंग ना, it's like their lines would not actually get into your head for the first time. उस NCERT को समझने के लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए. NCERT को पढ़ने के लिए आपको इंस्टीट्यूट मॉडल चाहिए, क्योंकि NCERT ऐसा एक बुक है जो ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है. उसके हर एक लाइन में क्वेश्चन है. वो एक्चुअली एक आंसर शीट है जो आपको सामने परोसा गया है. तो आप जितने अच्छे से वो आंसर की अच्छे से लर्न कर लेंगे ना उतने अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपका ऊपर से रीडिंग स्पीड इंक्रीज होती है, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है. आप देखे देखे क्वेश्चंस करने लगते हैं. द क्वेश्चंस व्हिच यूज्ड टू टेक 10 minutes or 15 minutes आफ्टर थिंकिंग, व्हेन यू रीड NCERT ना, द थिंग इज लाइक आपको टिप्स पे होने लगते हैं, कॉन्सेप्ट टिप्स पे बैठने लगते हैं. इवन इन फिजिक्स आई वुड break down the physics, chemistry and bio part later on, but I'm just focusing on right now on the NCERT part. इन बायो सब लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा NCERT की बोलते हैं बाइबल है, ऐसा कुछ है. फॉर मी इट इज़ द बाइबल ऑफ नीट. आप फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, बायो बोलो, इट डजेंट डिपेंड. बस आपको पढ़ना आना चाहिए कैसे पढ़ते हैं, और पढ़ने आने के लिए आपको एक टीचर चाहिए. आई वुड जस्ट से बिकॉज NCERT इज़ अ ब्रिलियंट बुक विच इफ़ यू अंडरएस्टिमेट योर स्कोर वुड बी अंडरएस्टिमेटेड. सो दैट्स द थिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ NCERT आई वुड से. नाउ हाउ टू स्टडी द 3 subjects, physics, chemistry, bio. Okay, I would just start with फिजिक्स. सबको बहुत डिफिकल्ट जाता है, सबको बोलते हैं कि ये तो हमारे प्लेट का नहीं, हम तो बायो लिए ही थे कि मैथ से बचने के लिए. देखो भाई, साइंस मीन्स मैथ्स. मैथ्स जान है साइंस की, उसको तो निकाल नहीं सकते ना. अब the physics part for me, I used to love physics. I don't know, I had that feelings कि जब मैं questions करती हूँ ना और जब वो आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता था. बट ये बहुत अच्छा वो पहले से ही बहुत अच्छा नहीं था. लाइक इन द बिगिनिंग आई ऑल्सो यूज टू स्ट्रगल कि कैसे करूँगी, कैसे इसको, मतलब ये हो ही नहीं रहा यार, जो भी समझा रहे हैं दूसरे दिन ही भूल जा रहे हैं. The thing of physics is there is some graphs I have seen. जब मैं छोटी थी तब मेरे भाई ने मुझे बताया था कि 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए 3 ग्राफ्स हैं. And for a graph of this it looks like somewhat like this for physics. पहले आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत स्लो जा रहा है ग्राफ. दिख रहा है, ये आपका एफर्ट लाइन है और ये आपका रिजल्ट लाइन है. सॉरी, ये आपका रिजल्ट लाइन है, ये आपका एफर्ट लाइन है.
तो ये आपका जो रिजल्ट है वो एकदम ही नहीं आ रहा है, बहुत कम, इतना ये दे रहे हो फिर जाके इतना बन रहा है। लेकिन द थिंग इज, आप जब फिजिक्स समझने लगते हो ना, तब आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हो, फिर आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। क्यों, मैं ये आपको भी बताती हूँ। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट कनेक्शंस। आपको एक चीज़ में कनेक्शन मिल गया, वो चीज़ आपकी हर जगह पे यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल डायमेंशनल यूनिट फार्मूला, हम लोग जब फार्मूला बनाते हैं किसी चीज़ का, जो फर्स्ट चैप्टर सीखते हैं वो हम लोग एक्चुअली में 11 के सारे चैप्टर्स में लगाते हैं, 12 के सारे चैप्टर्स में लगाते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर ग्रेविटेशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ईजी। आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया तो आपकी हर एक चीज़ में हर एक चीज़ लिंक है। आपको ये लिंकेज समझनी है। आपको फिजिक्स को अपने अंदर लेके आने के लिए ये लिंकेज का मतलब सबसे कम काम करो और आउटपुट ज़्यादा लो। आई वुड जस्ट से कि जब मैंने नीट का पेपर दिया था, मैंने फिजिक्स सबसे कम पढ़ा था, सबसे कम मैंने पढ़ा था और सबसे कम प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मैंने पहले इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, क्योंकि आई हैव फाउंड दैट लिंकेज। और ये था कि एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, मुझे वो पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स का ये चैप्टर है, हाँ तो ये केमिस्ट्री के साथ भी कैसे लिंक करता है। देखो थर्मोडायनामिक्स में भी बोलते हैं कि केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है, नहीं, इट ऑल अबाउट वर्क। और उसके अंदर भी फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे जब फर्स्ट लॉ लगाते हैं तब उधर भी फॉर्मूला चेंज किया जाता है, क्योंकि हम लोगों को बिठाना तो पड़ेगा ना दोनों का। So it's all about connection, how you find the connections between different thing. And जब आपको ये connections समझ में आ जाते हैं ना, तब it's like पानी हो जाता है, वो सब्जेक्ट ही पानी होने लगता है। क्योंकि इवन इन बायोलॉजी आई वुड जस्ट से पढ़ो मत, कनेक्शंस निकालो। जब तक आप ना उसको अपने रूह में नहीं डालोगे ना, वो चीज़ को आपके अंदर फील नहीं करोगे। इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स, आई से फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स। आप जब तक वो प्रोजेक्टाइल मोशन को जब तक 3D में इमेजिन नहीं कर सकते तब तक नहीं आएगा प्रोजेक्टाइल। वो दिखना चाहिए, जब एप्पल गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है, दैट इज़ ऑल अबाउट। अब ज़्यादातर बोलते हैं कि फिजिक्स के अंदर रट लो, नीट के अंदर रट लो, मत करो। फाइंड द कॉज, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। क्योंकि व्हेन यू नो दिस कॉज ना, अगर एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं आता है ना, यू हैव दैट ब्रेन की हाँ खुद से निकाल सको। आई वुड नेवर एवर सजेस्ट कि फॉर्मूला रट लो। रटने से बस वही गधों की तरह रटोगे, फिर बाद में वो एग्जाम के टाइम पे ऊपर जीता, नीचे जीता, साइड में जीता, ऊपर ये तो वही करोगे। जब तक समझोगे नहीं फॉर्मूला को, तब तक रहेगा कैसे दिमाग में। दिमाग में रखने के लिए वो फॉर्मूला समझो, आया कैसे, क्यों आया। प्रैक्टिस इज मोर देन वंस। वो निकालो फॉर्मूला खुद से बैठ के। जब तक फॉर्मूला अंदर नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या ही घंटा आएगा। सो डू नॉट जंप ऑन द क्वेश्चंस डायरेक्टली। आई वुड जस्ट से कि पहले ये क्लियर करो, थ्योरी करना है फिजिक्स के अंदर। अगर नीट देना है, थ्योरी करना है। और थ्योरी कैसे करना है, जो सर ने नोट्स दिए हैं वो पढ़ो। उसके बाद जो जो क्वेश्चंस करवाए हैं सर, वो रिवाइज करो। एंड उसके साथ जो जो फॉर्मूलाज डिराइव किए गए हैं, सर ने जो डिराइव करके रखे हुए, कोई फॉर्मूला होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ता है, मतलब उसका डेरिवेशन भी आपका मैथ्स के रिलेटेड होता है या फिर कुछ होता है, तो सर बोल देते हैं कि ये आपका बाहर है, वो वाले नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो कर सकते हो वो तो करो ना। ओके, देन कमिंग टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पहले बहुत इजी लगती है कि यार ये तो यार यही चीज़ है, मतलब पढ़ो और हो जाएगा। बायो भी सबको बहुत पहले बहुत इजी लगती है। बट आई वुड जस्ट से फॉर मी it was the two toughest subjects I have ever met, because it is not only about like doing the questions, it also about memorizing it, because इधर फॉर्मूला का कोई लॉजिक नहीं होता, इधर आप कोई लॉजिक से उसको याद ही नहीं रख सकते। वो फॉर्मूला है तो है, अब आप कैसे भी याद रखो। तो जब उसके अंदर लॉजिक नहीं होता ना, तब तक दिमाग रिकॉर्ड नहीं करने की वो नहीं रखता। तो वो क्या करना पड़ता है, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। इवन इन बायोलॉजी के अंदर भी यही सेम चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि बायो बहुत ईजी है, ये तो इसके अंदर तो मार्क्स आ ही जाएंगे 360 आउट ऑफ 360। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जब तक आप वो सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हो ना, एंड इवन द कर्व सेज दैट, अगर मैं इनका भी ये बनाऊँ, सो इनका जाता है ऐसा, पहले लगता है जितना आपने एफर्ट डाला है और इधर आता है रिजल्ट इतना।
फिर एक टाइम आ जाता है आप एफर्ट तो दे रहे हो लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो कांस्टेंट आ गया, मतलब उससे ऊपर जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? इट इज़ वेरी वेरी स्लो। बहुत आप एफर्ट इतना दे रहे हो और चेंज इतना आ रहा है। एफर्ट में कुछ चेंज ही नहीं दिख रहा, पहले इतना एफर्ट इतना ज़्यादा रिजल्ट, और इस बाद में क्या होगा, एफर्ट आपने तो बहुत दिया लेकिन रिजल्ट में कुछ दिख नहीं रहा, तो चेंजेस आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग इट, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग इट, एंड इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बायो नहीं है। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैं नीट के लिए बोल रही हूँ, मैथ्स के अंदर क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, जितना आप एफर्ट करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो मैथ्स इज़ लाइक गॉड ऑफ द सब्जेक्ट, वो जितना आप एफर्ट मारोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बट दीज आर समथिंग एल्स, you need to be more focused, you need to be more focused on the words which sir says. That's a very good, people do not pay attention during the class only. How come you could actually get which is important, which is not important? People underestimate the previous year questions. अरे यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, 10 ईयर का नहीं लगा के जाओगे, समझ में कैसे आएगा कि एनटीए चाहता क्या है? तुम्हारा जहाँ पे इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट में, वो तो पेपर नहीं बनाने वाला ना, लास्ट में जाके एनटीए बनाएगा। उसके ही अगर दिमाग को नहीं समझोगे, हाउ कुड यू एक्चुअली गेट थ्रू द एग्जाम? सो इट्स ऑल अबाउट इट, इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स, आई थिंक सो। देखो, मैं उतनी ये तो हूँ नहीं, मतलब सब तो जानती नहीं हो। इट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, माई हार्डशिप्स which I have tackled with my teachers, with my parents, with my siblings, so with my friends also. So yes, do make good friends I would say, who help you out in your doubts, not in something else. So go make good friends, have good company, because the 5 people whom you actually are with is the result of your characters. So be very much choosy about the people you are mingling with, about the people whom you are spending a valuable time. These 2 years are not a joke. For a NEET aspirant, it is never a joke. So please be serious. अगर नहीं करना तो पहले से बता दो यार, मत पढ़ो। I would just say, अगर नहीं आ रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, कुछ किक नहीं मिल रहा है, मत करो। क्या ही कर लोगे डॉक्टर बन के? कुछ है नहीं, बस ये एक जरिया है जिससे आप अपने एक ड्रीम को पाते हैं। अगर आपको वो क्रेविंग है, आपको अगर वो जिद है कि यही चीज़ किक करती है यार, इसके अलावा कुछ मज़ा ही नहीं आता, वो नीडल देख के ही मज़ा आ रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो think so you would find your kick in your fields and do best in it. Thank you so much for listening to me. I have taken you a lot of time, so thank you. So और कुछ